25 different reading comprehensions with different genres, which means 120 plus questions जो हम करने वाले हैं. Congratulations to you guys, congratulations to me. This is day 3 of solving an RC with JB, and today we are going to talk about non-fiction expository genre that we've picked up. So welcome back to 12 Minutes to CLAT. This is Jyoti Bhardwaj and I got you. So let's just begin with solving the RC. Let's just see कि आज RC में क्या होने वाला है. ठीक है. So oopsie, fitness check. The pen, I dropped the pen to check the fitness. Actually we have a platform here and उस platform से हमें नीचे उतरना पड़ता है in order to pick anything. So this was a fitness check. Well, so yeah. So basically everybody should work on their fitness, right? तो अपन इतना time नहीं मिलता, तो this is what we do. So yeah. And sometimes we have people for this thing, but we have this platform here, right? And since we are छोटे in height, but Keshav sir is very tall, so we have this platform जिस पे हम खड़े होके इस board पे class लेते हैं, because otherwise we wouldn't be visible, and if sir stands on this platform, so he wouldn't be visible क्योंकि वो ऊपर ही चले जाएंगे. So basically इसको हमें हटाना और लगाना पड़ता है, and we have people for this thing, but we deliberately do it ourselves because थोड़ी weightlifting हो जाती है इससे. But well, jokes apart. But no joke, we actually do that. We are very fitness oriented people. So yeah, so keeping that aside, let's begin with the passage. So here is the first paragraph and the first slide of the passage. I'll just get a little aside so that you can see this. Okay, so this is 1, this is 2. You can pause and read, you can take screenshots, whatever feels nice to you. This is slide number 3. Here, this is question number 1. This is 2. This is 3. This is 4. 5, 6, and 7. ठीक है. So you might think a question might be coming to your mind कि मैम 7 क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं RC में. हाँ, नहीं आते. मैंने intentionally on purpose कुछ questions इसमें add किए हैं. ठीक है, 4 या 5 questions ही आते हैं एक RC में. But ठीक है, हम थोड़े ज़्यादा कर लेंगे. That is not an issue. Now let's just read the passage. Let's just understand the passage और अपन accordingly आगे बढ़ेंगे. So I'll get aside, I'll read it for you. ठीक है, I'll make you understand the passage. So the passage starts with saying that language isn't something we pick up the way we pick up other cultural knowledge. ठीक है, author ने हमें opening statement में बता दिया है कि वो language के बारे में बात करने वाला है, और वो ये बता रहे हैं कि language कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बाकी cultural knowledge की तरह pick करते हैं. Like, now he's giving the examples that learning to read a clock or understanding how government works. Rather, it's hardwired into the biology of the brain. मतलब hardwired है, natural है basically. ठीक है? It's a specialized skill that emerges in children on its own with no deliberate effort or teaching involved, that people use without any conscious grasp of its internal rules, that looks essentially the same across all individuals, and that operates separately from general intelligence or reasoning ability. अब ऑथर ना यहाँ पे बस एक सिंपल सी बात हमें जो है बता रहे हैं कि भाई लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज जो है बाकी कल्चरल नॉलेज की तरह है. वो हमें बता रहे हैं कि लैंग्वेज जो है थोड़ी डिफरेंट है. कि आप एक घड़ी देखना सीख रहे हो, उससे डिफरेंट है लैंग्वेज को समझना. ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के बारे में समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है. बल्कि ये जो है लैंग्वेज जो है वो हार्डवायर्ड है हमारे ब्रेन में, बायोलॉजिकली हमारे दिमाग में वो सेट है. ठीक है, ऑथर यहाँ पे हमें बताता है. फिर वो हमें बताता है कि भाई इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल दैट इमर्जेस. वो चाइल्डहुड में ही आ जाती है आपके पास, ये ऐसी स्किल है. ठीक है, बट वो ऑल्सो एक बात बोलता है हमसे एट द सेम टाइम कि दैट लुक्स एसेंशियली द सेम अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल्स, एंड
that operates separately from general intelligence and reasoning ability. मतलब उससे अलग है. हो सकता है कि किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि उसकी रीजनिंग एबिलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी, वो वेरी कर सकता है. ठीक है. फिर बढ़ते हुए ऑथर कहते हैं दिस इज वाई सम रिसर्चर्स कॉल इट अ मेंटल फैकल्टी, अ मेंटल ऑर्गन, a neural system or a computational module, but the author's preferred label is instinct. ठीक है, बात सेम है. ठीक है, मेंटल फैकल्टी और ऑल दैट स्टफ, बट ऑथर क्या वो उसे प्रेफर कर रहा है इंस्टिंक्ट बोलना. ठीक है, द पॉइंट ऑफ दैट वर्ड is that humans are built to speak roughly, the way spiders are built to weave webs. तो स्पाइडर को वेब वीव करने में कोई एबिलिटी, कोई रीजनिंग एबिलिटी नहीं लगती है. दो स्पाइडर्स आर वेरी इंटेलिजेंट क्रीचर्स, बट उनको कोई ऐसे रीजनिंग नहीं लगती है यहाँ पे. ठीक है, तो जिस तरीके से स्पाइडर का नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू बिल्ड अ वेब, उसी तरीके से हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू टॉक, राइट, टू कम्युनिकेट बेसिकली. ठीक है, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट नो इंडिविजुअल spider figured out web building through cleverness or training. Spiders spin because their spider brains give them both the drive and the built-in ability to do it. ठीक है, और ऑथर इसको, इन चीजों को क्या इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से अलग बता रहा है. नाउ मूविंग ऑन, वो कहता है कि फ्रेमिंग लैंग्वेज एज एन इंस्टिंक्ट फ्लिप्स द ट्रेडिशनल व्यू. मतलब ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से कॉलिंग दिस लैंग्वेज इंस्टिंक्ट इज डिफरेंट. तो ट्रेडिशनल में पहले उसने हमें ऑथर का व्यू बताया कि वो इंस्टिंक्ट है, मेंटल फैकल्टी है, ऑल दैट स्टफ, बट ट्रेडिशनल व्यू में वो क्या है वो अब ये बताने वाले हैं. हेल्ड इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सर्कल्स वेयर लैंग्वेज इज ऑफन ट्रीटेड एज अ ह्यूमन इन्वेंशन लाइक अ कल्चरल टूल और a broader symbol using capacity on par with things like posture. So पहले postures were different, right? Why am I just so हमारे अगर तुमने होमो सेपियंस, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो पढ़ी है नहीं पढ़ी, बट अपन तो पहले वी वर नॉट एंटायरली ह्यूमंस, राइट. मतलब इस ये वाला फॉर्म नहीं था हमारा, हम लोग पहले बंदर थे. तो वो उसी से रिलेटेड बोल रहा है कि पोस्चर भी हमारा डिफरेंट था. वैसे बैक थोड़ी हंच होती थी और वियर्ड तरीके से अपन चलते थे. तो आदि जो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर द टर्म, बट या सो पोस्चर की तरह लैंग्वेज भी जो है ह्यूमन की इन्वेंशन है. इंस्टेड द ऑथर डिस्टिंग्विशेस लैंग्वेज फ्रॉम जनरल सिंबॉलिक एबिलिटी. अ यंग चाइल्ड, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन्वेंशन की है हमने, लेकिन ऑथर क्या बोल रहे हैं, ऑथर ने तो उसको डिस्टिंग्विश किया जनरल सिंबॉलिक एबिलिटी से, और फिर वो बोलते हैं कि अ यंग चाइल्ड कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्किल्ड एट ग्रामर वाइल बीइंग कंप्लीटली अनस्किल्ड एट अदर सिंबल सिस्टम्स, ड्राइंग, रिलीजियस इमेजरी, रोड साइंस एंड सो ऑन. सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई एक बच्चा बहुत स्किल्ड हो सकता है in communication, in grammar and all that stuff, but at the same time वो उसको road signs समझना है, रास्ता याद है. मतलब मेरे साथ road signs मुझे समझ आते हैं, but with me there's this thing that I cannot remember the route, whereas my sister, she is good at it. मतलब वो एक बार कहीं जाती है and even if she's coming after 5, 4, 6 years, she will remember the route. So सबकी एबिलिटी डिफरेंट है. सो जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि लैंग्वेज तो इंस्टिंक्ट है, लेकिन वो रीजनिंग से, सिंबॉलिक से अलग है, और जहाँ की ये उसको ऑन पार रख रहे हैं, मतलब सेम लेवल पे रख रहे हैं. किसके तहत? ट्रेडिशनल व्यू के तहत. ठीक है, moving on. So being good at language doesn't mean a child has some general symbolic processing talent. That said, the fact that language is a unique human trait doesn't mean humans should be studied outside of biology. So वो कह रहे हैं कि ये the fact that language is unique human trait, इसका मतलब ये नहीं है that humans should be studied outside biology. Plenty of species have their own unique remarkable specialized skills. सबके पास अलग अलग होते हैं. और एग्जाम्पल दे रहा है कि बैट्स जो है वो सोनर बेस्ड हंटिंग करते हैं, बर्ड्स जो है वो स्टार बेस्ड
लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन कर सकते हैं, उसी तरह से ह्यूमंस जस्ट हैपन टू हैव देयर own speciality, conveying detailed information about events and relationship between people, done by shaping sound as we breathe out. ठीक है, सो अपन ये कर सकते हैं, बेसिकली ये हमारी स्पेशल एबिलिटी है, उस स्पेशलनेस है, ठीक है, जैसे कि बाकी और भी क्रीचर्स में होती है. मूविंग ऑन, ऑथर हमसे बोल रहा है कि viewing language this way as a biological adaptation for conveying information rather than as the defining mark of human specialness also undercuts the idea that language controls or distorts our thinking, a claim the author says will later be shown to be false. Additionally, viewing language as one of biology's finely engineered system, echoing Darwin's admiration for the intricate fit of biological structures, means ordinary speech and everyday language deserves more respect than they usually get. So author basically यहाँ पे कह रहे हैं, author basically ये कह रहे हैं कि अगर हम लैंग्वेज को एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन मानकर देखें, यानी एक नेचुरल एबिलिटी की तरह हम इसको देखें, सो नेचुरल एबिलिटी बेसिकली जो इवोल्यूशन ने ह्यूमंस को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए दी है, राइट, सो तब ये बेसिकली मानना गलत हो जाता है कि लैंग्वेज ही ह्यूमंस को यूनिकली स्पेशल बनाती है, या फिर लैंग्वेज से, या फिर लैंग्वेज हमारी सोच को कंट्रोल करती है, राइट, बल्कि लैंग्वेज क्या है, वो भी आईज या ब्रेन की तरह एक नेचर का एक फाइनली डिजाइंड जो है इंजीनियर्ड सिस्टम है, ठीक है, उसी की तरह है. सो इसलिए एवरीडे स्पीच और नॉर्मल कॉन्वर्जेशन को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना कि हम फॉर्मल लैंग्वेज को देते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन, ऑथर हमसे कहता है दैट क्रूशियली द सोफिस्टिकेशन ऑफ लैंग्वेज इजंट समथिंग इंस्टिल्ड बाय पेरेंट्स और बाय फॉर्मल स्कूलिंग. मतलब कि ऑथर बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि ये एम्फसाइज कर रहा है कि लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी पेरेंट्स या स्कूल्स नहीं सिखाते, बच्चे इसे नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं. वो आगे वो बोलता है इसमें कि द author invokes Oscar Wilde's remark that truly valuable things cannot be taught. A small child consciously command of grammar already exceeds what's captured in any grammar guide or computer language processing system, and this holds true for essentially all humans. मतलब एक 2-3 साल का बच्चा बेसिकली वो कह रहे हैं कि उसको इतना ज्ञान होता है जितना ग्रामर गाइड या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में भी नहीं होगा शायद, और ये ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस के लिए जो है सही है, ठीक है. इवन पीपल कॉमनली मॉक्ड फॉर बैड ग्रामर लाइक सर्टेन एथलीट्स और टीनेजर्स यूजिंग कैजुअल स्लैंग. तो बेसिकली यू मस्ट हैव सीन दैट पीपल हु स्पीक रॉन्ग ग्रामर, बैड ग्रामर, उनको मॉक किया जाता है, ठीक है. जैसे अगर आप रॉन्ग हिंदी भी बोलते हो तो भी आपको किसी ना किसी तरीके से मॉक कर दिया जाता है, मजाक के वे में ही भले, बट हाँ किया जाता है, राइट, मजाक उड़ाया जाता है जैसे एथलीट्स का या टीनेजर्स का, क्योंकि उनके पास भी लैंग्वेज का वही नेचुरल व्हाट डू वी से ग्रामेटिकल इंस्टिंक्ट होता है, राइट. फिर मूविंग ऑन, ऑथर हमसे बोलता है इन शॉर्ट, बिकॉज लैंग्वेज कम्स फ्रॉम अ वेल बिल्ट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, it isn't the disorderly, arbitrary mess that some cultural commentators portray it as. So author basically यहाँ पे बोल रहा है आखिरी में कि ऑथर यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है कि लैंग्वेज कोई रैंडम या मेसी कल्चरल इन्वेंशन नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन से मिली एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, ठीक है. दैट इज इट फॉर दिस पैसेज. आई होप आपको समझ आया हो. सो बेसिकली ऑथर ने अपना व्यू बताया, फिर ऑथर ने ट्रेडिशनल व्यू बताया, फिर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग रीजनिंग और लैंग्वेज आना सेम है और ह्यूमंस की इन्वेंशन है, बट ऑथर कहता है इट इज़ एन इंस्टिंक्ट. मतलब एक बच्चा हो सकता है जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, लेकिन वो उसको रूट समझना आता हो, जैसे मुझे नहीं आते,
ठीक है, इस तरीके से. नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 says that according to the passage, which of the following does not stem from popular wisdom on language. ठीक है, popular wisdom does not stem, मतलब ट्रेडिशनली वो क्या मानते हैं उसको, उसकी बात कर रहे हैं. सो पॉपुलर विजडम में क्या है, बेसिकली पुरानी ट्रेडिशनल सोच, राइट, अबाउट लैंग्वेज, कल्चरल आर्टिफैक्ट बेसिकली क्या है. ठीक है, सो ए सेज लैंग्वेज इज अ कल्चरल आर्टिफैक्ट. हाँ, उन्होंने हमसे ये बोला था, अपन देख लेते हैं इसको. Traditional view held in humanities and social science circles where language is often treated as a human invention, like a cultural tool or a broader symbol using capacity on par. ठीक है, so yeah, 1 is absolutely right. ठीक है, right as in वो popular wisdom से match करता है, and we are looking for does not. So this can not be the answer, but this is one of the factors. ठीक है, सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. लैंग्वेज इज अ कल्चरल इन्वेंशन, तो उन्होंने क्या बोला था, लैंग्वेज इज अ ह्यूमन इन्वेंशन. तो अगेन दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट मैचेस विद द पॉपुलर विजडम. लैंग्वेज इज लर्नड एज वी ग्रो. अगेन उन्होंने कहा कि ये एक एबिलिटी है बेसिकली, जिसको अपन वो करते हैं on par with things like posture. तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चा, तो वो उसका पोस्चर सही होता है, ऐसा होता है. सो इंस्टेड द ऑथर डिस्टिंग्विशेस लैंग्वेज फ्रॉम जनरल सिंबॉलिक. सो वो जनरल सिंबॉलिक उससे इसको मैच कर रहे हैं. सो बेसिकली ए, बी और सी जो है ये तीनों पॉपुलर विजडम कैंप से ही आते हैं. ठीक है, सो ये तीनों एक उसमें आए. जस्ट 1 second. Yep. Now D says language is unique to Homo sapiens. अब अगर हम D, सिर्फ स्पेसिफिकली D की बात करें कि यूनिक टू होमो सेपियंस, ये भी ऑथर खुद कंफर्म करता है, राइट, कि और पॉपुलर बिलीफ्स में भी ये माना जाता है. सो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है इससे. सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल वो ही. सो यूनिक टू होमो सेपियंस, क्योंकि उसने बोला था कि सबके पास कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी होती है. ठीक है, और ह्यूमंस की ये है, लैंग्वेज है. ठीक है, तो ये उसी में आता है. ये कहता है लैंग्वेज इज अ साइकोलॉजिकल फैकल्टी. साइकोलॉजिकल फैकल्टी बेसिकली ये टर्म पॉपुलर या ट्रेडिशन से नहीं आती है. दिस कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट. दिस कम्स फ्रॉम अ एस्पेक्ट कि ये इंस्टिंक्ट है हमारा, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है लैंग्वेज. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. सो ई इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, now moving on to question number 2, it says which of the following can be used to replace the spiders know how to spin webs analogy as used by the author. okay, देख लेते हैं. जो ऑथर ने एक एनालॉजी दी थी ना कि स्पाइडर्स, जिस तरीके से स्पाइडर्स वेब बिल्ड करते हैं, वैसे हम भी लैंग्वेज को सीख जाते हैं. स्पाइडर्स को कोई स्पेशल क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. एक कहता है अ किटन लर्निंग टू जंप ओवर अ वॉल. लर्निंग वर्ड है यहाँ पे, मतलब ये कोई सीखी हुई स्किल है, राइट, इंस्टिंक्ट नहीं है. तो इसको अपन हटा सकते हैं. ठीक है, सो अगर होता है सी बेसिकली कैट्स जो है ये भी पहले तो ये धीरे धीरे उनकी मदर उन्हें सिखाती है ये सब. ठीक है, सो अपन इसको हटा सकते हैं. दो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज समथिंग जो अपन अपने बच्चों को सिखाते हैं बोलना, पर हम उनको ट्रेन नहीं करते, वो बस सीख जाते हैं उसे. ठीक है, नोबडी ट्रेन्स. तुम्हारे घर में तुम्हें हिंदी की ट्रेनिंग दी गई थी कभी? नहीं, इट इज जस्ट अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. बी सेज बीज कलेक्टिंग नेक्टर. सो बी को सिखाया नहीं है किसी ने नेक्टर कलेक्ट करना, राइट. सो उनके ब्रेन में ही ये इंस्टिंक्ट है. ठीक है, सो एग्जैक्टली स्पाइडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मैच कर रहा है. सो बी कैन बी द करेक्ट आंसर, बट सिंस वी हैवंट लुक्ड एट द अदर ऑप्शंस, सो we'll not finalize it. Instead we will keep it on standby. A donkey carrying a load. See, a horse running a derby, a pet dog protecting its owner's property. So C, D और E ये सब बेसिकली एक ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से आते हैं. ठीक है, इसलिए ये इंस्टिंक्ट से नहीं आते. सो ऑथर का जो स्पाइडर एनालॉजी का पॉइंट था
वो कोई भी ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन या फिर जीनियस चीज के बिना, मतलब इंस्टिंक्ट से काम करा जाता है उसमें, ठीक है। सो स्पाइडर वेब बनाना सीखता नहीं है, वो उसकी उसके पास नेचुरली वो एबिलिटी होती है, ठीक है। सो सी, डी और ई को अपन हटा सकते हैं, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 says according to the passage which of the following is unique to human beings? ओके, इसको भी देख लेते हैं। ए कहता है एबिलिटी टू यूज सिंबल्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, ठीक है। बी कहता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू ह्यूमन? हाँ, अब देखो, पैसेज ने एक लाइन बोली, अ नैक ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन बाय मॉड्यूलेटिंग द साउंड्स वी मेक व्हेन वी एक्सेल। ब्रीद वाली बेसिकली लाइन थी, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। Yeah, so humans just happen to have their own speciality, conveying detailed information about events and relationship between people, done by shaping sounds as we breathe out. So exactly, ये voice modulation की बात यहाँ पे ऑथर ने की है। So ये क्या है, एक एक रिमार्केबल स्किल जो ह्यूमंस के पास भी है। यहाँ पे बैट्स और बर्ड्स की दी गई है, बट अपना की अपन वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 1, 2 and 3, हाँ 3 पे है ना अपन, 3 पे है ना, हाँ 3 पे है, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ ए की बात करें, बेसिकली पैसेज यहाँ पे क्लियरली बोलता है कि सिंबल यूज जनरल एबिलिटी है ये, ठीक है, बहुत ही जनरल, यूनिक नहीं है ये, ठीक है। सो 3 साल का बच्चा भी ग्रामर में जीनियस हो सकता है, बट हो सकता है ड्राइंग में वीक हो, ठीक है। सो इसको अपन हटा सकते हैं। बी कहता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन। दिस इज एग्जैक्टली द ब्रीथ, द साउंड्स while we changing the sounds while we breathe out, ये वो वाला example है basically कि by modulating the sounds we make when we exhale. So B is the correct answer. Ability to communicate information to other members of the species. So talking about C again, ये unique नहीं है, ठीक है। जैसे bees जो है वो waggle dance करती हैं, या फिर जो एंट्स है वो कुछ करती हैं, उसी तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली, वैसे ही अपन भी वही करते हैं, तो अपन इसको हटा सकते हैं। एबिलिटी टू यूज साउंड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन ये बहुत ही जनरल है, तो हम इसको भी हटा सकते हैं, एंड ई को तो हम डेफिनेटली हटा सकते ही हैं, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट बाय पेरेंट्स or at school to children because why? What is the reason? A says children instinctively know language. This is exactly what the author says throughout the passage and this should be our answer. इसीलिए कि ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जो मतलब पेरेंट्स या टीचर्स हमें बिठा के सिखाएं। इंग्लिश उन्हें जरूर हमें सिखानी पड़ती है विद टाइम, क्योंकि हिंदी इंस्टिंक्टिवली आती है, या किसी की भी कोई भी मदर लैंग्वेज जो है वो इंस्टिंक्टिवली आती है, बिकॉज इट हैज जस्ट बीन हैपनिंग अराउंड, राइट। ऐसे उसमें कोई स्किल नहीं लगती, वो बस है ही, मतलब अनटिल अनलेस आपको बहुत ही एफर्ट लगता है, यू हैव सम कंडीशन सम व्हाटसोएवर, तो एक अलग चीज है। बी सेज चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज ऑन देयर ओन। नाउ अब बी जो हमारी स्टेटमेंट है, अगर सिर्फ हम उसकी बात करें, सो ऑन देयर ओन, तो यहाँ पे जो लर्न वाला जो एस्पेक्ट आ जाता है, राइट, ऑप्शन नंबर बी में, सो ये इसको गलत बना देता है, ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट एमेनेबल टू टीचिंग। अगर हम सी की बात करें, सिर्फ ये रीस्टेटमेंट है क्वेश्चन के कंक्लूजन का, दैट वाई बेसिकली नहीं बता रहे, सो सर्कुलर रीजनिंग इसको कहता है, तो ये इसको अगेन हम हटा सकते हैं। चिल्ड्रन नो लैंग्वेज बेटर देन देयर टीचर्स और पेरेंट्स, उन्होंने उसको गाइड से और कंप्यूटर से कंपेयर किया था, ना कि टीचर्स और पेरेंट्स से, सो इट इज रॉन्ग। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द नॉलेज ऑफ सेमियोटिक्स, नहीं, अगर हम डी ई की बात करें, ये बहुत ही एक्सट्रीम रॉन्ग क्लेम्स हैं, राइट। पैसेज ने ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा अगेन, ठीक है। सो वी कैन
rule these out, and hence for question number 4A is the correct answer. So basically रियल रीजन पैसेज में ये दिया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर बायोलॉजिकल बर्थ राइट. So a preschooler's tactic knowledge of grammar is more sophisticated than जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए किसका, द कंप्यूटर एंड द गाइड राइट. मतलब बच्चे ऑलरेडी इंस्टिंक्टिवली लैंग्वेज जानते हैं राइट, इनेट है बेसिकली, इसलिए टीच करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इट्स मतलब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओनली. Moving on, which of the following best summarizes the passage? Okay, summarizes the passage. Language is unique to Homo sapiens. Option number A कह रहे हैं language is unique to Homo sapiens. B कह रहे हैं language is neither learnt nor taught. ठीक है, language is not a cultural invention or artifact as it is made out. Okay, so basically A, B और C तीनों ऑप्शंस को जब आप देखोगे यहाँ पे, ये तीनों, ये सब पैसेज के छोटे छोटे पार्शल से पॉइंट्स हैं राइट, तीनों ही. सो दीज कैन नॉट, हाउ कैन यू समराइज फॉलोइंग दैट बेस्ट समराइजेस द पैसेज. तो ये तीनों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेसिकली, पूरा समरी नहीं करते ये इसको. तीनों को आप रूल आउट कर सकते हो. D says language is instinctive ability to of human beings. Now looking at option number D, basically ये सबसे ब्रॉड और सेंट्रल आइडिया जो पूरे पैसेज को कवर करता है राइट. बाकी सब पॉइंट्स बेसिकली जो हैं वो छोटी छोटी, जैसे स्पाइडर एनालॉजी, टीचिंग ना होना या बायोलॉजिकल अडैप्शन, इसी सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करता है. ठीक है, सो लैंग्वेज इज इंस्टिंक्टिव एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, बाकी सब इसको सपोर्टिंग वो है, आइडियाज हैं बाकी सब. सो डी कैन बी द करेक्ट आंसर. लैंग्वेज इज यूज ऑफ सिंबल्स यूनिक to human beings. Language is use of symbols unique to human beings. This ये basically गलत है. पैसेज एक्चुअली क्लियरली बोलता है कि सिंबल यूज करना जनरल स्किल है राइट, यूनिक नहीं है. इसको अपन हटा सकते हैं फिर से, बिकॉज अगेन दिस इज वन सपोर्टिंग फैक्ट, सपोर्टिंग डिटेल. ठीक है, moving on, 6 says which figure of speech is predominantly used by the author when comparing humans acquiring language to spiders spinning web. Okay, let's see. A कहता है metaphor. अब देखो metaphor में क्या होता है. metaphor basically क्या करता है, वो directly calls one thing another. एक चीज को दूसरी चीज बोलता है. ठीक है, जैसे मैंने बोला she is my sunshine, या फिर he is a lion. ठीक है, ये एक मेटाफर हुआ राइट, विदाउट, आई डिड नॉट पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन नहीं किया मैंने, बट ऑथर जो है या कोई भी, मतलब मैं इसको एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं हम. मेटाफर नहीं हो सकता. ठीक है, उसको अपन हटा सकते हैं. बी कहते हैं एनालॉजी. ऑथर बेसिकली एक एक्सटेंडेड कंपैरिजन बनाता है. ठीक है, जस्ट 1 second गाइस. Yeah. I think yeah, कुछ तो ब्लर हो गया था. Okay, anyway. Yeah. हाँ, बेसिकली ऑथर एक कंपैरिजन बनाता है दो चीज़ों के बीच, कि ह्यूमन लैंग्वेज के बीच और स्पाइडर के वेब स्पिनिंग के बीच राइट, ताकि बेसिकली वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब लैंग्वेज इज एन इंस्टिंक्ट को सपोर्ट कर सके, जैसे स्पाइडर्स का इंस्टिंक्ट है वेब बनाना. ठीक है, उसी तरीके से. ये बेसिकली एक क्लासिक एनालॉजी का स्ट्रक्चर है. ठीक है, द ऑथर बेसिकली यूजेस दिस कंपैरिजन व्हाइल एक्नॉलेजिंग वेब्स एंड लैंग्वेज. तो ये दीज आर नॉट आइडेंटिकल, बट he uses it as a useful lens for the rest of the discussion, right, which is there in the passage. Analogy हो सकता है बिल्कुल. अभी हमने बाकी नहीं देखे हैं, तो अपन रूल इन नहीं करेंगे किसी चीज को. पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी नॉन ह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन ट्रेट देते हो. जैसे कि मैं बोलती हूँ, लेट्स से
द फ्लोर स्पोक हीट, ठीक है, जमीन ने बोला गर्मी. there is no sense in this entire sentence, but let's say, ठीक है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है that wind whispered through the trees. so wind is a non-human thing, जिसमें मैंने whispered because I can whisper, right? so वो नहीं कर सकती, so ये मैंने human trait दिया उसको. so यहाँ पे ह्यूमन को सॉरी स्पाइडर्स को, इंसेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज कहीं भी नहीं दी गई हैं, तो पर्सोनिफिकेशन को आप हटा सकते हैं. हाइपरबोली, अब हाइपरबोली होता है एग्जैजरेट करना किसी भी चीज़ को. सो यहाँ पे कोई भी एग्जैजरेशन नहीं दिया है ऑथर ने. बेसिकली यहाँ पे ऑथर ने एक कंपैरिजन दिया है, एक फैक्चुअल लॉजिकल कंपैरिजन दिया है, ठीक है. हाइपरबोली का एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस बैग वेज अ टन. टन तो कितना ज्यादा होता है ना, बट आई एम एग्जैजरेटिंग. आई जस्ट व्हाट आई मीन टू से इज कि बहुत हैवी है, ठीक है. आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स. No, I literally cannot eat a horse, but I am exaggerating by emphasizing कि भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं एक घोड़ा खा जाऊंगी, which sounds so weird, but well, ठीक है. सो हाइपरबोली में एग्जैजरेशन होता है, ठीक है. सो डीबे नहीं हो सकता. ऑक्सिमोरॉन, ऑक्सिमोरॉन में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को, राइट, एक कॉम्बिनेशन में रखते हैं. जैसे लेट्स से ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, मैं कहती हूँ ओरिजिनल कॉपी. सो ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है. what's that? That's an oxymoron. Quite good, quite and then good, pretty bad, ठीक है, ये सब ऑक्सिमोरॉन्स हैं, ठीक है. सो और यहाँ पे कोई भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को साथ में रख के कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनाया गया है. सो ई बी नहीं हो सकता एंड हेंस इट इज बी, ठीक है. ये आंसर तो बहुत ही ईजी था टू अंडरस्टैंड, बट बाकी हमने फिगर ऑफ स्पीच भी जो है इससे पढ़ के समझ लिए, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड इनेट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू व्हाट. एक्चुअली इनेट उन्होंने दिया नहीं है हमको कॉन्टेक्स्ट में. आई डोंट थिंक सो दैट इनेट इज रिटन हियर, बट मैंने बोला जरूर था इनेट. चलो एनीवे उसको हटा दो. बट अगर दिया होता, उन्होंने कहा होता दैट लैंग्वेज इज इनेट इन अस, ठीक है. सो ए सेज यहाँ पे, ए बेसिकली सेज लर्नड थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस. नो दैट्स नॉट ट्रू. naturally present from birth, हाँ, something that is innate, it means that it has been there since birth, right? Naturally present from birth, not acquired. So B is the correct answer. Rare and unusual, deliberately taught by an expert, temporary and easily forgotten, ये सब गलत options है, ठीक है. That's it. Happy learning, my friends. If you have any questions, any doubts, anything you would like to talk about, you can always comment down below and we'll be happy to help. And that's it. So आज हमने 7 questions किए, हमने पैसेज को अच्छे से समझा और उसके बाद अपनी नॉलेज को questions में अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया एंड हमारे आंसर्स निकाले. So basically remember the details, okay? माइंड मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, यू विल हैव टू माइंड मैप. चलते चलते जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले ऑथर ने अपना व्यू बताया, फिर उसने ट्रेडिशनल व्यू बताया, ठीक है, और फिर उसने उसके ऊपर बात की, उसने एक एनालॉजी दी. तो ये मेन पॉइंट्स ना दिमाग में रखने, ये डिटेल्स याद रखने. आप जो इनके अंदर जो सपोर्टिंग डिटेल्स है उनको आप पैसेज में वापस जाके एक बार फाइंड आउट कर सकते हो, एक बार उनको समझ सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. दैट्स इट. I'll see you in the next class. All the best.